Hello students, I'm Sub-Lieutenant Arun Ganachari, ex-officer Indian Navy, and I cleared my CAPF Assistant Commandant examination in my first attempt. So today we'll be discussing about CAPF Assistant Commandant Paper 2. And I know a lot of you guys have problem regarding paper 2 because paper 1 is very similar to all your CDSC and AFCAT and all the other exams. As it is a multiple choice question, the method to follow there is very different, and when we come to paper 2 there is altogether a different methodology. So we'll together discuss what to do, how to approach it. Okay, so let's see. So what are the learning outcomes per se from this session, what you will be getting it? So first of all, you will understand the pattern of paper 2. Okay, so it changed some 3-4 years back. Now the pattern is totally changed, so they will understand the pattern, will understand the rationale behind previous year questions, like why did they ask those questions itself. So we can fairly predict which kind of questions will be asked in the coming year, and the sequence of attempting paper 2. Okay, so paper 2, as you know, it will be around 200 marks. So which sequence to follow, which are the questions we should solve first, which should be taken out later. Okay, so how to prepare for paper 2 in less time. Less matlab, now it's almost only 2 months is left. Okay, if it postpones, that's well and good. If the exam does not get postponed, so you have around 2 months. Okay, so what are the book list you need to follow, and do's and don'ts, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है. And mock practice sessions कब start करना चाहिए. This question has been asked by so many students to me. कब से start करना चाहिए writing answers and all. So we'll discuss everything about that. Okay, so let's start. Understanding the pattern, as I said, it is around 200 marks. So I'll divide it into two sections. First one is general knowledge, which has around 140 marks. In that we further divide it into three sections. One is essay writing. Essay writing will have 4 essays to write. Each consists of 20 marks. So totally essay will be around 80 marks. You see, you have option here. You have 6 essays. Among 6 essays, you need to write only 4. So you can leave for 2. So got 2 extra options over there. And argument, you need to write an argument for and against. So you'll have 2 questions of this kind, and each carries 20 marks. Then there it is report writing. Report writing as such, don't take it verbally. I'll explain it later. Okay, so don't take it verbally. To write a real report, you should go and analyze. You should listen to so many comments. You should listen to the people working on it. So it's not a real report writing, it's a representative writing, I would say, taking into consideration all the views. So we'll deal into it later. Okay, next one is English. Regarding English, there is only 60 marks, and a lot of students complain to me that paper 2 is all about English. No, it's not all about English. English ही पूरा नहीं है. 60 मार्क का इंग्लिश आता है. 60 भी अगर मेरे ख्याल से आप लोग प्रिसे, some people call it precise, some people call it presse. I prefer to call it as presse. Okay, so presse and reading comprehension, I do not consider them exactly as an English topic. So ये दो भी अगर हम निकाल लेंगे, 50 plus 20, that's 35. Add 140 of general studies to it, so total 175 में मेरे ख्याल से एक्सेप्ट द क्वेश्चंस कुछ भी इंग्लिश का नहीं है. इसके बाद में जो आता है द सी डी एंड ई सेक्शन, दैट इज री राइटिंग द सेंटेंसेस हो गया, फ्रेजेस देते हैं उनको यूज करके सेंटेंसेस बनाना हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया. दिस इज अ पार्ट वेयर यू विल गेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंग्लिश. मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश ग्रामर प्रॉपरली. अपार्ट फ्रॉम इट, if I have a fair knowledge about English subjects, that will do. Okay, so let's move on to the previous questions. कैसे मतलब, what is the rationale behind? देखो, essay, these were the 6 topics. Among these 6 topics, you have to write 4 questions. We are considering the question paper of 2020, which was the very latest one. So let us say essay में पहला topic था crisis of credibility in Indian electronic media. क्यों पूछा था? Why did they ask this question itself? देखो, the main reason behind this was a lot of fake news was going on. Okay, and referring to these fake news, there were so many lynching cases going on. Okay, because of caste related हो गया, cow smuggling का हो गया, lot of issues. Okay, apart from that, there was systematic violation of what you call responsible journalism. Responsible journalism, to give an example, जो भी रेप विक्टिम होता है, रेप विक्टिम का फेस नहीं दिखाना चाहिए. You should not show the face of this rape victim. But this electronic media blatantly ignored these suggestions from Supreme Court हो गया, government directory, and what we call as responsible journalism. That was missing fairly in the Indian electronic media.
although I will consider in the print media as well, some newspaper ignored these conditions. So there was a crisis credibility. So this was an GK topic. ये बहुत ज़्यादा चल रहा था 2019 टू 20, अगर आप लोग पेपर उठा के देखोगे ये बहुत चल रहा था तब, ठीक है. सो फेयरली इफ वी अज्यूम, आई विल शो यू ऑलमोस्ट these questions are asked from general knowledge itself. Securing India's international borders is a challenging exercise for Indian armed forces. You might have heard about China dispute, डोकलाम क्राइसिस चल रहा था तब, ठीक है. उसके बाद में पाकिस्तान के साथ वी हैव बीन ऑलवेज, देयर इज एन इशू ऑलवेज, ठीक है. सो दीज इश्यूज वे आर गोइंग ऑन. सो द टॉपिक केम लाइक जो भी जनरल में चल रहा है, जो भी टॉपिक जनरल में चल रहा है, दे आर आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट. इमर्जिंग थ्रेट्स टू इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी, ये तो आपको जानना ही है क्योंकि आप लोग, यू गाइस आर राइटिंग सीएपीएफ. सीएपीएफ इज बेसिकली ये जो इंटरनल सिक्योरिटी है, दैट्स इट्स मेन एरिया. यही ज़्यादा संभालते हो लोग. कंसिडर सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, जो भी इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड है, होम अफेयर्स के अंडर आता है, तो इंटरनल सिक्योरिटी इज अंडर होम अफेयर्स. सो फेयरली while you if you are writing for CAPF assistant commandant examination, should be at least well versed with internal security related issue. If we take out these three, these are GK बेस्ड क्वेश्चंस, जो भी न्यूज़ में चल रहा था, करंट अफेयर्स में चल रहा था, उनके ऊपर है. अगर यहाँ से छोड़ के हम लोग थोड़ा नीचे आएंगे, देन दीज आर व्हाट वी कॉल एज अब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स. एंड आई पर्सनली विल सजेस्ट यू नॉट टू गो फॉर दीज काइंड ऑफ एसेस. यहाँ पे क्या होता है ना, कंटेंट ज़्यादा नहीं मिलता है आपको, ठीक है. तो ट्राई टू स्टिक टू करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक, क्योंकि आपको मटेरियल भी ज़्यादा होता है एंड फ्लो पकड़ता है. देर आर की वर्ड्स विच यू नीड टू यूज़, तो ज़्यादा अच्छे से बनता है ऐसे अगर आपको बनना है तो. दीज एब्स्ट्रैक्ट रिलेटेड टॉपिक्स, आई अंडरस्टैंड वन यू नीड टू चूज, सो इट विल बी अ फेयर डिवीजन. 3-3 ये होता है. अगर आप पीसीएल क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो देर आर जनरल टॉपिक्स, देन देर आर देर एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स, ठीक है. तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन, दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स. अगर आपको कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता है, देन गो फॉर इट. पेरेंटिंग इन अ कॉम्पिटिटिव इंडियन सोसाइटी इज अ चैलेंज. दिस वाज लाइक, ये भी न्यूज़ में था थोड़ा, क्योंकि वो वाइट हैट जूनियर का भी इशू बन रहा था तब, ठीक है. वाइट हैट जूनियर हो गया, बाईजूस का हो गया. सो दिस ऑल रिलेटेड पेरेंटिंग के बारे में ही बहुत ज़्यादा चल रहा था तब, ठीक है. तो दैट गेम. सो दीज 3 जो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा ये करो कि अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं बचता है, और एल्स इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द टॉपिक विच दे हैव आस्क्ड, अब इसके अलावा तो गो फॉर इट, ठीक है. अदरवाइज पर्सनली आई वुड सजेस्ट स्टिक टू द जीके रिलेटेड टॉपिक्स. ओके, चलो. एंड कमिंग टू द आर्ग्यूमेंट, देखो यहाँ पे दिस वॉज रिलेटेड टू कोरोना वायरस, क्योंकि पैंडमिक मतलब कोरोना वायरस था, सॉलिट्यूड मतलब अकेले रहना इज नॉट अनवेलकम. देखो यहाँ पे 2 नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों नेगेटिव हम हटा देंगे तो वेलकम हो गया, ठीक है. सॉलिट्यूड ड्यूरिंग पैंडेमिक इज अ वेलकम, मतलब अच्छा था, उसके बारे में लिखना था आपको आर्ग्यूमेंट. पॉलिटिकल अवेयरनेस अमॉन्ग सोशल एलिट इज इनकॉन्सिक्वेंशियल. इनकॉन्सिक्वेंशियल मतलब क्या, अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है. ये भी वहाँ पे चल रहा था. मतलब सोशल एलिट मतलब कौन होते हैं सोशल एलिट? जो भी आपका एक्टर हो गया, क्रिकेट प्लेयर्स हो गया, पर्सन हु इज हैज एक्सेप्शनल टैलेंट इन वन और द अदर फील्ड, ठीक है. तो उन लोगों को हम लोग सोशल एलिट बोलते हैं. टैलेंट मतलब पॉलिटिक्स में भी कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, दैट्स ऑल्सो अ टैलेंट, ठीक है. तो जो भी सोशल एलिट है, उनका पॉलिटिकल अवेयरनेस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में लिखना था. प्रोविजंस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी. न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो देखो यहाँ पे, आई थिंक न्यू एजुकेशन पॉलिसी केम अराउंड जुलाई 2020, ठीक है. आपका एग्जाम था दिसंबर 2020. तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट आप लोगों को 6 महीने का अच्छे से बनाना है. 6 महीने का जो भी टॉपिक्स है अच्छे से सॉलिड बनाओ उनके ऊपर, जो भी आपको कंटेंट बनाना है. इम्पैक्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लॉज तो लास्ट ईयर पूरा न्यूज़ में ही था. आई थिंक ऑर्डिनेंस केम इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है. फिर लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट का असेंट मिलने तक सितंबर हो गया था, ठीक है. तो दिस वॉज देयर. सो ऑलमोस्ट अगर हम लोग अच्छे से 140 में देखेंगे तो आई विल फेयरली से 120 मार्क्स का कम्स डायरेक्टली फ्रॉम योर करंट अफेयर्स ऑफ 6 मंथ्स, ठीक है. तो करंट अफेयर्स ऑफ 6 मंथ्स पूरा अच्छे से टारगेट कर लेना, हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द इंग्लिश. प्रेसे राइटिंग हो गया, प्रेसे और कॉम्प्रहेंशन मतलब पैसेज आता है, ठीक है. और पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जनरली फॉर ऑल द करंट गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जाम्स, यू गाइज हैव
वेरी गुड ग्रिप फॉर दिस पैसेज, ठीक है। तो दैट्स एन ईजी पार्ट। ग्रामर टॉपिक देखो, यहाँ पे 1 मार्क के 10 क्वेश्चन आते हैं। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज होता है, एक एक्टिव वाइज का होता है, एक पैसिव वाइज का होता है, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, आर्टिकल्स होता है, फ्रेजेस होता है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लास्ट ईयर पूछा था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस मतलब सेल्फ या सेल्फ से जो भी एंड करता है ना वर्ड, वी कॉल them as reflexive pronouns using phrases to make sentences। phrases मतलब क्या, called off, denied, ठीक है। इनको लेके सेंटेंसेस बनाता है ताकि आप लोगों को फ्रेजेस का मीनिंग पता है कि नहीं, दे आर चेकिंग दैट, ठीक है। एरर डिटेक्शन इज बेसिकली एनीथिंग लाइक यू गाइस आर सीन इन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट, सेम थिंग, ठीक है। तो ये जो है दिस ओनली दिस पार्ट इज हार्ड कोर इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। इसके अलावा इवन दो इफ यू आर इन हिंदी मीडियम, कन्नड़ा मीडियम और वट एवर योर रूरल लैंग्वेजेस, ठीक है, यू कैन अटेम्प्ट इट। अराउंड 170 तक कहाँ पे भी इंग्लिश नहीं आता है मेरे ख्याल से। जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश, उतना तो इंग्लिश सबको आता ही होगा। अगर इफ़ यू आर कंप्लीटेड योर डिग्री, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इटसेल्फ, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द सीक्वेंस इन विच यू कैन अटेम्प्ट दिस entire paper too, okay। So take it with a pinch of salt because I am giving a fair warning here, this is my sequence। ये जो मेरे ख्याल से अच्छा है वो वाला सीक्वेंस है। For you guys personally I would say attempt मतलब प्रैक्टिस करना, ठीक है। प्रैक्टिस करो, हाउ टू प्रैक्टिस एंड ऑल आई विल बी टेलिंग इन नेक्स्ट स्लाइड्स, ठीक है। वहां से सी योर स्ट्रॉन्ग एरियाज, सबका एक एक स्ट्रॉन्ग जोन होता है, ठीक है। तो कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग एरिया जहाँ पे आप लोग अच्छा लिख रहे हो, ठीक है, या जहाँ पे आप लोग कम टाइम में लिख रहे हो, दोज आर कॉल्ड एज योर स्ट्रॉन्ग एरियाज। अटेम्प्ट दोज फर्स्ट, सबसे पहले वो कर लेना, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश इस CAPF पेपर में हाईली स्कोरिंग है, प्लस इट्स वेरी इजी। और जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको तो बिना प्रिपरेशन के भी कर सकते हो, उतना इजी वाला पार्ट है, ठीक है। तो इंग्लिश पहले कर लेना, बाद में रिपोर्ट कर लेना, क्योंकि इजी लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं रिपोर्ट में, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट बाद में कर लेना उसके बाद में। एंड फाइनली गो फॉर एसे, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी लिखना होता है, लंबा लिखना होता है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा लास्ट में रख दो। उसके ऊपर क्या होता है ना, एसे में यू हैव टू चूज, 6 में से 4 चूज करना है। समटाइम्स वो पिकिंग थोड़ा टाइम ले लेता है, ठीक है। तो कीप इट एट द लास्ट। एंड इंग्लिश पार्ट में जो प्रेसी है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप लोगों को पहले लिखना है तो पहले लिख दो, नहीं तो लास्ट में रखना है तो लास्ट में रख दो। माई फेयर सजेशन वुड बी प्रैक्टिस करो पहले, नो योर स्ट्रॉन्ग एरियाज, उसके बाद में अटेम्प्ट करना, ठीक है। चलो, एंड हाउ टू प्रिपेयर, क्या करना है। देखो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स स्टार्ट डायरेक्टली कंप्लीट एक मतलब कहीं से भी क्वेश्चन पेपर उठा लेते हैं या कहीं पे भी टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं एंड दे डायरेक्टली स्टार्ट राइटिंग आंसर्स। कभी मत करना, यू विल लूज योर मोरल, कम हो जाता है एकदम से मोटिवेशन। आपको लगता है पेपर 2 मतलब कुछ ऐसा बड़ा माउंटेन जैसा लगने लग जाता है। तो स्टार्ट ऑफ विथ वेरी बेसिक्स। बेसिक्स मतलब क्या, इफ़ यू आर नॉट रेडी और NCERTs देन इट विल बिकम वेरी हार्डर फॉर यू, क्योंकि आप लोगों को एडिटोरियल समझ में नहीं आता है। आप लोगों को जो भी डिस्कशन हो रहे हैं यूट्यूब वगैरह देखेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को डिस्कशन समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन जो पूछ रहा है क्या मतलब है उसका वो समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो स्टार्ट ऑफ विथ बेसिक्स। NCERTs पढ़ लेना, बुक लिस्ट में देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में देता हूँ कौन कौन से NCERTs पढ़ना है। व्हेन यू कंप्लीट योर NCERTs, ठीक है, उसके बाद में न्यूज़पेपर पढ़ लेना। न्यूज़पेपर दैट ऑल्सो आई विल टेल यू विच आर द न्यूज़पेपर यूनिट। उसके बाद में आउटर स्केच बनाना है टॉपिक्स का। लिखने से पहले आउटर स्केच बनाना सीखो। आउटर स्केच मतलब क्या है, देखो लेट अस से इफ सम टॉपिक रिलेटेड टू इंडिया बांग्लादेश हो गया, तो आउटर स्केच मतलब क्या, यू शुड बी एबल टू पिन पॉइंट द रिलेटेड टॉपिक्स। मतलब इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन में व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स, क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, अच्छा क्या चल रहा है, बुरा भी क्या चल रहा है। बिगेस्ट प्रॉब्लम्स, इफ आई मस्ट से अबाउट द प्रॉब्लम्स, ट्रांस बाउंड्री वाटर डिस्प्यूट्स, ठीक है, वाटर डिस्प्यूट्स इन दैट स्पेसिफिकली तीस्ता रिवर जो है उसका डिस्प्यूट चल रहा है। उसके बाद में इलीगल इमिग्रेशन हो गया, इमिग्रेशन इज अ बिग इशू। इमिग्रेशन जो वेस्ट बंगाल इलेक्शन में भी इसके बारे में बहुत कुछ बोला गया था, ठीक है, इमिग्रेशन प्रॉब्लम है। उसके बाद में देर इज NRC एंड CA रिलेटेड इशू। इसका क्या है, अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया एंड इफ दे कंबाइन विथ NRC दैट इज नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जो नॉन सिटीजन्स है कहाँ पे जाएंगे। बेसिकली द प्रॉब्लम इज विथ आवर ईस्टर्न पार्ट, वेस्ट बंगाल हो गया,
एंड फ्यू स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स। तो इफ़ वी कंप्लीटली डू इट, अगर एनआरसी अगर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे पूरा वो रजिस्टर जो भी है, तो कहाँ जाएंगे नॉन सिटीजन्स, दैट इज़ देयर। उसके बाद में स्मगलिंग, वेरी ह्यूज इशू, ठीक है, स्मगलिंग रिलेटेड न्यूज़ेस। सो दीज आर द इश्यूज व्हाट वी कॉल कीवर्ड्स। ये आप लोगों को पहले आउटर स्केच बनाना है, दिस शुड बी देयर, उसके बाद में लिखना चालू करो, ठीक है। तो पहले कोई भी टॉपिक, इंडिया बांग्लादेश एज एन एग्जांपल हियर, तो ये आउटर स्केच बनाना सीखो। उसके बाद में स्टार्ट राइटिंग आंसर्स विदाउट टाइम, आई एम स्ट्रेसिंग दिस, यू शुड राइट विदाउट टाइम। पहले ही मतलब एक क्वेश्चन लेकर उसको इतने ही टाइम में ख़त्म करना है, ऐसा मत बैठो, दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग स्ट्रैटेजी। पहले विदाउट टाइम करो, गिव इम्पोर्टेंस टू क्वालिटी कंटेंट फर्स्ट, ठीक है। विथ प्रैक्टिस यू विल मैनेज द टाइम, ठीक है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्वालिटी कंटेंट को दो। एंड यूपीएससी आई रिटर्न फेयर अमाउंट ऑफ यूपीएससी एग्जाम्स, इट्स ऑलवेज क्वालिटी, ठीक है। याद रखना, पूरा पेज भरने से कुछ नहीं होता है, क्वालिटी वर्ड्स, ठीक है। तो पहले टाइम छोड़ दो, बस आंसर लिखो। एंड उसके बाद में सेपरेटली राइट ईच कंपोनेंट मतलब क्या है, ऐसे का कंपोनेंट, उसको अलग से टाइम लगाओ, ऐसे कंपोनेंट कर दो। उसके बाद में रिपोर्ट राइटिंग विथ टाइम, टाइम लगाओ, सेपरेटली ओ कंपोनेंट पूरा कर दो। उसके बाद में आर्ग्यूमेंट, टाइम लगाओ, ओ कंप्लीट करो। ये सब कुछ होने के बाद ओनली देन गो फॉर कंप्लीट पेपर प्रैक्टिस, ठीक है। इससे पहले कभी भी प्रैक्टिस मत करना पेपर कंप्लीटली। तो क्या करना है आपको, बेसिक से स्टार्ट करो, एनसीईआरटीज पढ़ो, उसके बाद में न्यूज़पेपर स्टार्ट कर देना, एनसीईआरटीज पढ़ के न्यूज़पेपर पढ़ो, उसके बाद में आउटर स्केच ऑफ द टॉपिक्स, देन विदाउट टाइम अटेम्प्टिंग, उसके बाद सेपरेट सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करते जाना विद टाइम, उसके बाद में कंप्लीटली, ओके। चलो, रिगार्डिंग बुक लिस्ट, इफ यू हैव टाइम, आई एम पुटिंग ए क्लॉज हियर, इफ यू हैव टाइम, रीड ऑल द एनसीईआरटीज, जो भी आप लोगों को एनसीईआरटीज सब कुछ पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट रीड दीज टू, पॉलिटी और इकोनॉमी 11th स्टैंडर्ड का, एंड इफ यू हैव सम मोर टाइम, सोशियोलॉजी ऑफ 12th स्टैंडर्ड। एटलीस्ट दीज टू आर माय फेवरेट बुक्स। इसमें बहुत अच्छे से दिया है पॉलिटी, मतलब हाउ द इंडियन पॉलिटी वेंट थ्रू, व्हाट हैपेंड। एंड जो इकोनॉमी का है ना, पूरा आपको पूरा समझा देगा इंडिया का इकोनॉमी कैसा था बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, वाई वी वेंट फॉर द सर्विस सेक्टर, क्या हुआ था, व्हाट वर द थिंग्स, ठीक है। विल अंडरस्टैंड द इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम अ वेरी ग्रेट परस्पेक्टिव, वेरी वेल रिटन बुक। उसके बाद में सोशोलॉजी ये पढ़ लो, न्यूज़पेपर देखो, रीड द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, मैटर नहीं करता है, दोनों अच्छे बुक है। बट देर इज समथिंग कॉल्ड एज द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, जो भी साउथ इंडिया के बिलोंग करते हैं, यू गाइज नो अबाउट दिस न्यूज़पेपर, ठीक है। ये जो इंडियन एक्सप्रेस है उसमें भी दो आता है, एक नॉर्थ, मतलब जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे एक आता है, एंड द न्यू इंडियन एक्सप्रेस कम्स इन साउथ इंडिया। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस इज नॉट दैट गुड, उतना अच्छा नहीं है कंटेंट उसमें। तो आप लोग अगर इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ रहे हो तो द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, ठीक है। एंड योजना, दिस इज माई सजेशन टू द गाइज हु हैव नॉट रेड एनी न्यूज़ पेपर्स, ठीक है। आपको कुछ भी पता नहीं है पहले के इश्यूज़ के बारे में, उनका मतलब एलॉबरेट आंसर आपको लिखना नहीं आता है, तो क्या अप्रोच रहना चाहिए आपको, टू अंडरस्टैंड दैट बेटर, गो फॉर दिस योजना। योजना का मैगजीन मिलता है, अब बस योजना मैगजीन पीडीएफ करके गूगल में डाल दो, आपको मैगजीन मिल जाता है। लास्ट 12 मंथ्स, जो अगस्त में एग्जाम है तो लास्ट 12 मंथ्स जाओ, उसमें से क्या होता है, एटलीस्ट 7 to 8 एडिटोरियल्स होते हैं, ठीक है। उसमें दो पढ़ो, एटलीस्ट दो पढ़ो, ठीक है, दो पढ़ो। उसके बाद में करंट अफेयर, जो भी आप लोग ये एग्जाम प्रिपरेशन के लिए करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, एडिट सप्लीमेंट कर देना उसको भी, मतलब आप पेपर 1 के लिए ऐसे ही करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो करंट अफेयर्स वही मैगजीन कंटिन्यू कर लेना, वो यू गाइज नो अबाउट लॉट ऑफ मैगजीन्स। सो आई वुड नॉट सजेस्ट एनीथिंग पर से स्पेसिफिक, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी आप लोगों को जो भी आप लोग रेफर करते आ रहे हो, कंटिन्यू विद दैट। उसके बाद में राज्यसभा टीवी का द बिग पिक्चर, वेरी गुड सोर्स, स्पेशली अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़े हैं और आप लोगों ने एडिटोरियल का पूरा, कुछ लोग क्या करते हैं, दे स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, मतलब हैबिचुअल होते हैं, एंड दे मेक नोट्स आउट ऑफ इट, कंसाइज नोट्स बनाते हैं, दैट्स द बेस्ट वे। अगर वो नहीं हुआ है तो ये बिग पिक्चर का जो है ना सोर्स, वेरी गुड सोर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, दे विल ब्रिंग सम एलीट मेंबर्स फ्रॉम हु हैव सर्व्ड इन द हाई लेवल ऑफिशियल कैपेसिटी हो गया, या द सब्जेक्ट एक्सपर्ट ऑफ दैट फील्ड, उनको बुलाते हैं एंड दे डिस्कस अबाउट द टॉपिक, ठीक है।
वेरी गुड पॉइंट्स, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ से पॉइंट्स लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की चांसेस बहुत हाई रहते हैं। उसके बाद में द एंकर जो बिग पिक्चर चलाता था, फ्रैंक रोजन पेरेरा, वेरी बिग फैन ऑफ हिम। सो उन्होंने एक चैनल स्टार्ट किया, भारत फर्स्ट। वहाँ पे सिलेक्टिव टॉपिक्स कर लेना अच्छे दिया है। मतलब आई थिंक 2-3 days बैक ही हैज टॉक्ड अबाउट लक्षद्वीप इशू, वेरी ग्रेट। मतलब वहाँ पे भी पैनलिस्ट अच्छे होते हैं। सो दीज आर योर टू सोर्सेस। अगर आपको मूड नहीं बन रहा है, ऐसा कुछ है, तो गो फॉर दीज टू सोर्सेस। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, यहाँ ये सब कुछ करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब कुछ कंसाइजली आपको नोट्स में बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू मेक वेरी कंसाइज नोट्स ऑफ ऑल ऑफ दिस, देन दैट विल हेल्प यू गाइज इन ए रिविजन, ठीक है। और रिविजन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अगर मान लो सिर्फ मल्टीपल चॉइस है, 4 ऑप्शन है, अगर आपने कहीं पे भी पढ़ा होगा, पहले कभी भी पढ़ा होगा, तो लगभग आपको पता चल जाता है, क्योंकि आंसर आपके सामने है। ये जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के पेपर होते हैं ना, वहाँ पे रिवीजन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो भी आप लोग पढ़ोगे, योजना पढ़ लिया, ठीक है, अंडरलाइन कर लो। उसके बाद में एक कंसाइज नोट्स बना लो, एक रफ एक शीट में उसको नोट्स बना देना। उस नोट्स को बंडल अप कर दो अच्छे से, ठीक है। बंडल अप करके बिफोर द एग्जामिनेशन एटलीस्ट एक वीक पहले सब कुछ रिवाइज करके जाना, ठीक है। चलो, दिस वॉज द बुक लिस्ट। डूज एंड डोंट्स, क्या नहीं करना है, ठीक है। डोंट बी अ नोट्स कलेक्टर, ये बहुत लोग करते हैं। यहाँ से नोट्स, वो वाले चैनल, ये वाले चैनल, इनका टेलीग्राम चैनल, उनका टेलीग्राम चैनल, जिधर भी नहीं मिले नोट्स, सब नोट्स इकट्ठा करना कभी मत करना। स्टिक टू योर थिंग्स। एक लिस्ट, अच्छे से लिस्ट बना लेना, ये मुझे पढ़ना है, उसको पढ़ना है, उसके बाद में रीड री रीड एंड रिवाइज, बस इतना ही करते जाना। स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, एटलीस्ट एग्जाम सब कुछ खत्म होने तक। स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, इमेजिन योर सेल्फ वेयरिंग दोज ऑफिशियल यूनिफॉर्म्स एंड ऑल, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, हो जाएगा। सोशल मीडिया टेक्स एटलीस्ट 2 to 3 hours ऑफ योर डे, ठीक है। तो अगर आप लोग वो 2 to 3 hours आंसर राइटिंग या पेपर 2 के बारे में लिख लेंगे, तो यू गाइज हैव अ ग्रेट चांस ऑफ क्लियरिंग इट। एंड पेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दिस इज माय पर्सनल सजेशन। क्या करना है आपको, जो भी यूपीएससी के मतलब ऑफिशियल वेबसाइट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहां से क्या करो, पेपर टू पे जो भी क्वेश्चंस है ना, उनको एक जगह लिख कर कहीं पे भी पेस्ट कर लेना बस। इफ नथिंग हैपन्स, एसे, रिपोर्ट एंड आर्ग्यूमेंट, इन तीनों को कहीं पे पेस्ट कर दो। इससे क्या होता है, आपको पर्सपेक्टिव मिलता है कैसे पूछ सकता है, ठीक है। दैट पर्सपेक्टिव विल हेल्प यू व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द लाइक नोट्स बना रहे हो या कोई भी एडिटोरियल पढ़ रहे हो, दैट पर्सपेक्टिव विल हेल्प यू, ठीक है। तो ये जो पेस्ट करना है कर लेना कहीं पे भी। एंड प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत लोग क्या करते हैं, नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है बट लिखना नहीं आता है। यू गाइज हैव क्लियर्ड योर CDSC 3-4 टाइम्स, ऑफ कैट हर बार क्लियर करते हो, ठीक है, पर आपका CFA नहीं हो रहा है। व्हाट माइट बी द रीज़न, आप लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आंसर राइटिंग इज ऑल टुगेदर एन अनदर इशू। ये जो मल्टीपल चॉइस में मार्क करना है, दैट्स वन काइंड ऑफ स्ट्रेंथ, बट पेपर टू जो डिस्क्रिप्टिव लिखना है, दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। एंड स्पेशली आई हैव सीन दिस प्रॉब्लम विथ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, स्पेशली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को डिस्क्रिप्टिव अच्छे से लिखना नहीं आता है, ठीक है। आर्ट स्टूडेंट्स, दे हैव देयर एग्जाम्स विच आर डिस्क्रिप्टिव, सो दे हैव फेयर नॉलेज कैसे लिखना है। इंजीनियरिंग वाले जो भी ग्रेजुएट्स हैं, उनको थोड़ा एक कम रहता है। तो प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। एंड वन मोर थिंग, वन ऑफ द स्टूडेंट हैड मैसेज मी कौन सा पेन यूज़ करना है। पेन आपको जो भी यूज़ करना है, दैट्स डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल कंफर्ट, बट इंक पेन यूज़ नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि वो पेपर उतने अच्छे क्वालिटी के नहीं होते, स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं। एंड दिस वन मोर पॉइंट आई वांट टू स्ट्रेस इज, सेट योर बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है। पेपर 2 happens in the afternoon, and lot of students have this habit of sleeping in the afternoon. So set your biological clock, आज से छोड़ दो दोपहर में सोना, छोड़ दो बिल्कुल। स्टार्ट स्लीपिंग, गेट अप, वर्कआउट, एवरीथिंग, लाइक आप जो भी आपका शेड्यूल है, दोपहर में मत सोना। जो भी एग्जामिनेशन का क्लॉक है, सेट इट प्रॉपरली, ठीक है। क्योंकि आपको 3 घंटे बैठ के वहाँ पे एग्जाम लिखना है, अगर आपको वहाँ पे नींद आ गया तो खत्म। तो वो पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक सेट कर लो। नींद नहीं आता है वैसे, टेंशन बहुत रहता है एग्जाम हॉल में, बट क्या करता है, योर माइंड विल नॉट वर्क एट ऑप्टिमम कैपेसिटी। तो ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसको ट्रेन करो। आपके पास अभी भी 2 महीना है, 2 months इज मोर देन इनफ, तो ट्रेन इट प्रॉपरली फॉर दैट स्पेसिफिक एग्जाम टाइमिंग, ठीक है। चलो, दीज आर द डूज एंड डोंट्स, लेट अस मूव ऑन। एंड फाइनली, रिगार्डिंग मॉक प्रैक्टिस सेट,
कब स्टार्ट करना है मैंने तो बोल दिया, आफ्टर यू कंप्लीट योर एनसीईआरटीज। आप लोगों ने एटलीस्ट योजना के 3-4 महीने के तो एडिटोरियल्स पढ़ लिए होंगे, और उसके बाद में एटलीस्ट 10 to 15 बिग पिक्चर आपने वो वीडियोस देखे होंगे, बिग पिक्चर के RSTV के। उसके बाद में अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना, उससे पहले कभी मत करना, ठीक है। चलो, सो रिगार्डिंग आवर इनिशिएटिव, ब्रेवास डिफेंस एकेडमी विल गिव 5 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स। अगर आपको ऑप्शन भी है, अगर आपको सेक्शन वाइज लेना है तो सेक्शन वाइज भी टेस्ट ले सकते हो। हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर पर्सनलाइज्ड फीडबैक देते हैं कि ये क्या होता है ना, ये जो बच्चे कैसे लिखते हैं हमारा, यहाँ पे मार्जिन छोड़ते हैं, यहाँ पे ऊपर वाले यहाँ पे, तो आफ्टर योर एवरी आंसर विल बी गिविंग फीडबैक हियर, ठीक है। तो पर्सनलाइज फीडबैक रहता है। उसके बाद में 1 hour 1 on 1 सेशन, आफ्टर योर कंप्लीट योर 5 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स, यू विल बी हैविंग 1 on 1 सेशन विथ मी। अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक डाउट है, आपको कहीं पे भी मिस हो रहा है आपका स्पेसिफिकली, तो आई विल गाइड यू पर्सनली। तो 1 on 1 सेशन होता है। तो रजिस्टर फॉर ऑल दोज थिंग्स, आई गाइज नीड टू फिल अप द फॉर्म विच विल बी पुट अप इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, ठीक है। वहाँ पे एक लिंक होता है, वहाँ पे गूगल फॉर्म है, वो गूगल फॉर्म में आप साइन अप कर दो। समवन फ्रॉम द academy will call you up and we can continue. And regarding the question paper and all, just download the Brevard Defense Academy ऐप, ये प्ले स्टोर में है, तो वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लेना, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ करने के बाद समवन फ्रॉम द एकेडमी विल कॉल यू, एंड उसके बाद में 5 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, लिख कर हमें भेज देना, विल चेक इट अप एंड विल गिव यू प्रॉपर फीडबैक। उसके बाद में यू कैन ईजिली स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन पेपर 2। And regarding good score, personally, I would say anything above 100 exceptional. You are too good. Anything about 85, 90, 95 भी अच्छा है. That's also a good score. But considering the number of posts, try to go for at least 100, 110. That should be your target. To push. अगर आप पर्सनली भी मतलब खुद क्वेश्चन पेपर लेकर आप करोगे, then you'll reach 80 to 85 if you are very good with your very strong with your preparation. 80-85 या 90 तक भी आप पहुंच जाओगे, बट विथ कंपटीशन आपको मतलब थोड़ा और करना होगा। फॉर दैट एक्स्ट्रा 20 to 25 मार्क्स वी विल हेल्प यू आउट, ओके। चलो, दिस इज आवर इनिशिएटिव, जस्ट फिल द फॉर्म, समवन विल कॉल, ओके। थैंक यू।